بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزیکل کوانٹیٹیز، طبعی مقداریں. دیر آر ٹو ٹائپس آف فزیکل کوانٹیٹیز. طبعی مقداروں کی دو قسمیں ہیں. پہلی بیس کوانٹیٹیز، بنیادی مقداریں. دوسری ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز، ماخوذ مقداریں، اخذ شدہ مقداریں جو دوسری مقداروں سے اخذ کی گئی ہوں. بیس کوانٹیٹیز، بنیادی مقداریں. فزیکل کوانٹیٹیز which have their unique identification. طبعی مقداریں جن کی منفرد شناخت ہو، الگ تھلگ شناخت ہو. یونیک کا مطلب منفرد، آئیڈینٹیفیکیشن شناخت. تو طبعی مقداریں جن کی منفرد شناخت ہو and they don't depend upon the other quantities، اور ان کا انحصار دوسری مقداروں پر نہ ہو، یعنی وہ اپنی ذات میں الگ تھلگ ہوں، اکیلی ہوں اور منفرد ہوں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر لینتھ لمبائی، اور نمبر 2 ماس کمیت یعنی مقدار مادہ، اینڈ ٹائم اور وقت. یہ تینوں مقداریں اپنی ذات میں اکیلی ہیں اور منفرد ہیں. ان کی وضاحت کے لیے دوسری مقداروں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اس لیے ان کی الگ تھلگ شناخت ہے. تو ایسی مقداریں بنیادی مقداریں کہلاتی ہیں. ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز، ماخوذ مقداریں، اخذ شدہ مقداریں. فزیکل کوانٹیٹیز which are derived from base quantities. طبعی مقداریں جن کو بنیادی مقداروں سے اخذ کیا گیا ہو، ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ماخوذ مقداریں کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ویلاسٹی، سمتی رفتار. سمتی رفتار ویلاسٹی کا بہترین اور خوبصورت ترجمہ ہے جو اپنے معنی خود دیتا ہے. ایکسلریشن اسرا، مومنٹم معیار حرکت ایٹسٹرا، اور بھی بہت سی ماخوذ مقداریں ہیں. ویلاسٹی کس طرح ماخوذ مقدار ہے؟ آپ جانتے ہیں ویلاسٹی کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہے، اور میٹر کی بنیادی مقدار کون سی ہے؟ لمبائی. میٹر تو اکائی ہے نا، اور اس اکائی کی جو میٹر کی بنیادی مقدار ہے وہ لمبائی ہے، اور سیکنڈ اکائی ہے، سیکنڈ کی بنیادی مقدار وقت ہے. تو ویلاسٹی لمبائی اور وقت سے ماخوذ ہے. لمبائی اور وقت سے ویلاسٹی کو اخذ کیا گیا ہے، اس لیے یہ ماخوذ مقدار ہے. اسی طرح ایکسلریشن یعنی اسرا، اس کی اکائی میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے، اور اس کو بھی لمبائی اور وقت سے اخذ کیا گیا ہے. مومنٹم کا فارمولہ ایم وی ہوتا ہے. ایم ماس یعنی کمیت یا مقدار مادہ، یہ بھی بنیادی اکائی ہے. اور آگے ویلاسٹی ہے، ویلاسٹی کا تو آپ کو پتہ ہے وہ ماخوذ اکائی ہے. تو اس طرح ویلاسٹی، ایکسلریشن، مومنٹم اور بہت سی دوسری چیزیں، دوسری جو مقداریں ہیں وہ ماخوذ مقداریں کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کو بنیادی مقداروں سے اخذ کیا گیا ہوتا ہے. انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، اکائیوں کا بین الاقوامی نظام، یعنی پوری دنیا میں جو اکائیوں کا نظام چلتا ہے. ان 1960 میں an international conference of scientists was held. سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی ان سیور، فرانس کے ایک مقام سیور پر. کس لیے ہوئی؟ in order to establish the standard of units for base quantities. بنیادی مقداروں کی اکائیوں کا معیار مقرر کرنے کے لیے. بنیادی مقداروں کی اکائیوں کا معیار مقرر کرنے کے لیے. بنیادی مقداریں تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اور مقداروں کی پھر آگے اکائیاں ہوتی ہیں. تو اکائیوں کا بین الاقوامی معیار مقرر کرنے کے لیے فرانس کے ایک مقام سیور پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. Now this system is called System International of Units. اب یہ نظام اکائیوں کا بین الاقوامی نظام کہلاتا ہے، اور انگریزی میں ایس آئی اس کا مخفف ہے. مختصر طور پر ایس آئی لکھا جاتا ہے. With the help of this system، اس نظام کی مدد سے we can write the base units. ہم بنیادی اکائیاں لکھ سکتے ہیں. derived units ماخوذ اکائیاں لکھ سکتے ہیں. اینڈ سپلیمنٹری یونٹس اور ضمنی اکائیاں لکھ سکتے ہیں. آپ کا ایک سالانہ امتحان ہوتا ہے، اور پھر جو بچا کھچا ہوتا ہے وہ ضمنی امتحان. تو ضمنی کا مطلب ہوتا ہے جو بچی کھچی اکائیاں ہیں، جو بعد میں رہ گئی اکائیاں ہیں، ان کو
सप्लीमेंट्री यूनिट्स या ज़िमनी इकाइयाँ कहा जाता है। तो इस फ़िक्रे को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, इस निज़ाम की मदद से, वी कैन राइट द बेस यूनिट्स, हम बुनियादी इकाइयों को लिख सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, माखूज़ इकाइयों को लिख सकते हैं। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ज़िमनी इकाइयों को लिख सकते हैं। इनकी बाद में हम तफसील भी पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड सिंबल्स, बुनियादी मिक़दारें, उनकी इकाइयाँ और उनकी अलामात। पहले खाने में लिखा बेस क्वांटिटी यानी बुनियादी मिक़दार, और आगे लिखा है एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बैनुल अक़वामी इकाई, और आगे लिखा है सिंबल, अलामत। तो पहला कॉलम है उसमें बुनियादी मिक़दारें लिखी हुई हैं। पहली मिक़दार लेंथ यानी लंबाई, और इसकी इकाई आगे लिखी है मीटर, और इसको अलामत से ज़ाहिर किया जाता है एम से। और दूसरे नंबर पर मास यानी कमियत, मिक़दार मादा, तो मिक़दार मादा की इकाई है किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से ज़ाहिर किया जाता है, के बड़ा और जी छोटा। और तीसरे नंबर पे है टाइम, टाइम की इकाई आपको पता है सेकंड होती है, सेकंड को एस से ज़ाहिर किया जाता है। और चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट, बरक़ी रौ, बरक़ी करंट, और इसकी इकाई एम्पेयर है, इसको बड़े ए से ज़ाहिर किया जाता है। और पाँचवें नंबर पे टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, दर्जा हरारत की इकाई केल्विन है, केल्विन को के से, बड़े के से ज़ाहिर किया जाता है। और छठे नंबर पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत या तनवीरी शिद्दत, तनवीर रोशनी को कहते हैं ना, नाम भी हम रखते हैं। तो तनवीरी शिद्दत, रोशनी की शिद्दत, इसकी इकाई कैंडेला है, कैंडेला को सी डी से ज़ाहिर किया जाता है, सी बड़ा और साथ डी छोटा। और आखिर में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शय की मिक़दार, किसी चीज़ की मिक़दार, इसको मोल से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी अलामत है MOL। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ज़िमनी इकाइयाँ। द यूनिट्स विच डू नॉट बिलोंग टू द बेस आर डिराइव्ड यूनिट्स, इकाइयाँ जिनका ताल्लुक ना तो बुनियादी इकाइयों से हो और ना ही माखूज़ इकाइयों से हो। दीज आर ओनली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ये सिर्फ हिंसी मिक़दारें हैं। इल्मुल हिंसा, ज्योमेट्री को कहते हैं। दीज आर ओनली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ये सिर्फ हिंसी मिक़दारें हैं, इनका ताल्लुक ज्योमेट्री के साथ है। नेम्ड एज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और इन मिक़दारों के नाम मुस्तवी ज़ाविया और तजसीमी ज़ाविया या ज़ाविया मुजस्सम है। मुस्तवी ज़ाविया जो हमवार सतह के साथ बन रहा हो, और सॉलिड एंगल ज़ाविया मुजस्सम, तजसीमी ज़ाविया जो पूरे जिस्म के साथ बन रहा हो, नाम से ज़ाहिर है। तो ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ यानी हिंसी मिक़दारें हैं, जिनके नाम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यानी मुस्तवी ज़ाविया और ज़ाविया मुजस्सम है। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़ रेडियन, मुस्तवी ज़ाविये की इकाई रेडियन है, और तजसीमी ज़ाविया या ज़ाविया मुजस्सम की इकाई स्टीरेडियन है। आगे इनकी तारीफ भी हम पढ़ेंगे। रेडियन, इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दायरे के दो रदासों के दरमियान ज़ाविया है। दो रदास देखें, सुर्ख तीर के निशानों से ज़ाहिर किए गए हैं तस्वीर में, जहां आर आर लिखा है। इन दो रदासों के दरमियान बनने वाला ज़ाविया है। इफ़ द आर्क ऑन द सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द रेडियस, अगर दायरे के मुहीत पर जो मुमास बनता है, दायरे के मुहीत पर मुमास कौन सा बन रहा है? आर, जो सब्ज रंग के तीर से ज़ाहिर किया गया है। तो जो आर का सब्ज रंग के तीर से जो ज़ाहिर किया जाने वाला मुमास है, इसकी लंबाई अगर रदास के बराबर है तो दो रदासों के दरमियान बनने वाला ज़ाविया एक रेडियन कहलाएगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए। इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दायरे के दो रदासों के दरमियान बनने वाला ज़ाविया है। इफ़ द आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस, अगर दायरे के मुहीत पर बनने वाला जो मुमास है इज़ इक्वल टू द रेडियस, वो दायरे के रदास के बराबर होगा। जो मुमास है दायरे के मुहीत पर बन रहा,
वो सब्ज रंग के तीर के निशान के साथ आर लिखा हुआ है। अगर ये फासला आर दायरे के रदास के बराबर होगा जो सुर्ख तीर के निशान से जाहिर किया गया है, तो जाविया कितना होगा? 1 रेडियन होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, सॉलिड एंगल की इकाई स्टीरेडियन है। सॉलिड एंगल को जाविया मुजस्सम या तजसीमी जाविया कहते हैं। इसकी तारीफ है, इट इज़ ए 3 डायमेंशनल एंगल। ये एक से जहती जाविया है, 3 जहतों वाला, 3 समतों वाला जाविया है। विच इज़ मेड एट द सेंटर ऑफ द सफ़ियर, जो कि कुर्रे के मरकज़ में बनता है। सामने की शक्ल में एक बड़ा सारा फुटबॉल नुमा कुर्रा नज़र आ रहा है और उसके दरमियान में 0 लिखा हुआ है जो कि कुर्रे के मरकज़ को ज़ाहिर करता है, और यहीं पर ये जाविया बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। इट इज़ मेड बिटवीन 2 रेडियाई, ये 2 रदासों के दरमियान बनता है। 2 रदास आपको सामने की शक्ल में एक कोन सी नज़र आ रही है और इसके दोनों तरफ 2 रदास हैं। दोनों रदासों के दरमियान ये जाविया बना हुआ है। 2 तो ये रदास हैं और तीसरी कौन सी चीज़ है? एंड द सरफेस ऑफ द सफ़ियर हैविंग एरिया R2, और उसी कुर्रे का एक छोटी सी सतह जिसका रकबा R² हो, उसी कुर्रे की एक छोटी सी सतह जिसका रकबा R² हो, इस रकबे, इस सतह R² और 2 रदासों के दरमियान जो जाविया बन रहा है, जहां 1SR लिखा है, वो एक स्टीरेडियन कहलाएगा। दोबारा मैं बात को समझा देता हूं। देखें, एक कौन सी बन रही है कुर्रे के अंदर, तो कुर्रे का मरकज़ O है, O के साथ ही ये जाविया बनता है। इसमें कुर्रे की एक सतह हमने ली है जिसका रकबा है R²। इस सतह और 2 रदासों के दरमियान जो जाविया बनता है, बशर्ते के कुर्रे के मरकज़ में बने, वो जाविया एक स्टीरेडियन होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। जाविया मुजस्सम को आप इस तरह से समझें कि आप किसी तरबूज में से टाकी निकाल रहे हैं, बिल्कुल कोन शक्ल की, और ये टाकी तरबूज के मरकज़ से निकाल रहे हैं। तरबूज के मरकज़ से आपने कोन शक्ल की टाकी निकाली है, और जो कोन का, जो निकाली गई टाकी का जो नोकदार हिस्सा है जो मरकज़ से निकला है, उसका जाविया कोन की, उस टाकी की सतह से अगर बनाएं तो वो जाविया मुजस्सम, वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। और ये जाविया से जिहती होगा, 3 रुखी जाविया होगा। तफहीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का मानी, इस्तिलाहात का मफहूम। पहली है बेस क्वांटिटीज़, बुनियादी मिक़दारें। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, माखुज़ मिक़दारें, यानी जो अखज़ की गई हैं। और नंबर 3 यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मुनफरद शिनाख्त। सप्लीमेंट्री यूनिट्स नंबर 4 है ज़िमनी इकाइयाँ। जैसे ज़िमनी इम्तिहान होता है, एक असल इम्तिहान होता है, और उसके बाद जो बचे कुछ तालिब इल्म हैं वो ज़िमनी इम्तिहान में अपने पर्चे देते हैं। इसी तरह जो असल इकाइयाँ हैं और जो बच गई हैं, जो बाद में दरियाफ्त की गई हैं, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स और उर्दू में ज़िमनी इकाइयाँ कहते हैं। मास नंबर 5 कमियत यानी मिक़दार मादा। और नंबर 6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तनवीरी शिद्दत यानी रोशनी की शिद्दत। तनवीर रोशनी को कहते हैं, हम अपना नाम भी रखते हैं तनवीर। तो तनवीरी शिद्दत, रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। तफहीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का मफहूम। पहली है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, ज्योमेट्री की इकाइयाँ यानी ज्योमेट्री की मिक़दारें, ऐसी मिक़दारें जिनका ताल्लुक़ ज्योमेट्री के साथ हो। प्लेन एंगल, मुस्तवी जाविया यानी जो एक ही सतह पर बना हो। सॉलिड एंगल, जाविया मुजस्सम नाम से ज़ाहिर है, जो पूरे जिस्म के साथ कोई चीज़ जाविया बना रही है। और जो से जिहती जाविया है, 3 रुखी जाविया है, उसमें किसी चीज़ की लंबाई भी आ जाती है, चौड़ाई भी आ जाती है, ऊंचाई भी आ जाती है, यानी उस हजम में जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरे जिस्म की नुमाइंदगी करती हैं, इसलिए इसे जाविया मुजस्सम कहा जाता है। और नंबर 4 सरकमफ्रेंस, मुहीत, इहाता। और नंबर 5 3 डायमेंशनल,
سے جہتی تین روخی، یعنی جس کو ہم ایکس وائی اور زیڈ تین محوروں سے ظاہر کرتے ہیں جس مقدار کو، وہ سے جہتی مقدار یا تین روخی مقدار کہلاتی ہے، اور انگریزی میں اسے 3 ڈائمینشنل کہتے ہیں۔